Hello everyone, this is Umar Azam and today I am here with another video for you, and our today's topic is summarized written text. Now summarized written text is one of the major tasks in the test and it has a total weightage of 20.7%. The description of this task is that for this task candidate को एक passage provide किया जाता है और इस passage की जो total length होती है that is up to 300 words, which means कि एक lengthy passage आपको यहाँ पर provide किया जाता है. Now the candidate's task here is to number one read this passage. Candidate ने इस passage को read करना होता है. And after reading this passage, the candidate needs to type a summary of this passage inside the response box जो candidate की screen के ऊपर display किया जाएगा. अब यहाँ पर summary writing के लिए एक बहुत important instruction होती है जो आपको clearly वहाँ पर provide भी की जाती है. And that instruction is that number one आपकी summary it should consist of a single sentence. अब सिंगल सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि आपने वन लाइन सेंटेंस बनाना है. सिंगल सेंटेंस मीन्स कि आपने एक से ज्यादा फुल स्टॉप यूज नहीं करना. इफ यू विल यूज मोर देन वन फुल स्टॉप आपकी समरी इट विल स्प्लिट इनटू टू सेंटेंसेस, और अगर आप टू सेंटेंस की समरी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो आपकी समरी रिजेक्ट कर दी जाएगी. सो मेक श्योर दैट यू मस्ट construct a summary consisting of only a single sentence over here. And the second important instruction for this task is its word limit, which is 5 to 75 words, which means the summary should not consist of less than 5 and more than 75 words. तो यहाँ पर अब लोअर लिमिट तो आपके लिए एज सच इतनी डिफाइंड नहीं है, बट द अपर लिमिट इज डिफाइंड. आपकी एक अच्छी समरी जहाँ पर आप फुल मार्क्स अटेन कर सके यहाँ पर, उसके लिए यू शुड कंस्ट्रक्ट अ समरी ऑफ इन बिटवीन 50 to 75 वर्ड्स. इतने वर्ड्स की समरी लिखकर आप इजिली एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं. अब आपने अपनी समरी कंस्ट्रक्ट किस तरह से करनी है, व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन दिस टास्क. नंबर वन, यू नीड टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली. आपने पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड व्हाइल रीडिंग दिस पैसेज आपने उधर अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है. यू नीड टू आइडेंटिफाई 3 to 4 मेन डिटेल्स फ्रॉम द पैसेज और आपको अपने लिए एक कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना है. यूजिंग दिस टॉपिक 3 to 4 डिटेल्स एंड कंक्लूजन आपने अपनी समरी कंस्ट्रक्ट करनी है. एंड इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट दिस समरी यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस, candidate must use the techniques of complex sentence and compound sentence. Okay, so complex sentence के अंदर basically we join two sentences using subordinating conjunction. Now what are subordinating conjunction? After, as, although, even though, before, because, if, since, though, unless, until, when, whenever, wherever, whereas, while. ये जो conjunctions मैंने यहाँ enlist किए हैं ये conjunctions होते हैं आपके subordinating conjunctions. Using these conjunctions आपको topic, details और conclusion को आपस में connect करना है और वो आपका complex sentence कहलाएगा. Similarly, compound sentences is where we join two sentences using coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions क्या क्या होते हैं? For, and, nor, but, or, yet, so. ये आपके coordinating conjunctions होते हैं. तो जब आप ये conjunctions use करके दो sentences को आपस में connect करेंगे तो the resulting sentence will be a compound sentence. तो ये conjunctions आप collectively use करके coordinating and subordinating conjunctions को you can use collectively to make a complex and a compound sentence, जिसके through आप easily अपने पूरे passage को within a single sentence easily summarize कर सकते हैं. The scoring of this task is dependent upon 4 factors. First factor is content, which means कि आपने जो भी details अपनी summary में include की हैं वो entirely passage में से ही आपने pick करनी है. अगर आप अपने पास से कोई additional information add करते हैं that is not from the passage, उसके लिए आपको content में marks नहीं दिए जाएंगे and content here carries 2 marks. Second factor is form, which carries 1 mark, and form means कि आपकी word limit fulfill होनी चाहिए यहाँ पर, that is 75 words या उससे less, और आपने sentence यहाँ पर जो है वो सिंगल सेंटेंस की समरी बनानी है. तो अगर आप ये दोनों में से कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, रिमेंबर योर समरी विल बी रिजेक्टेड. थर्ड फैक्टर हियर इज ग्रामर, व्हिच कैरीज 2 मार्क्स. आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, व्हिच मींस यू नीड टू प्रैक्टिस मेकिंग कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. अगर आप यहाँ पर वो करेक्टली फॉर्म नहीं करेंगे सो ऑफ कोर्स आपके ग्रामर के मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे. एंड लास्टली यहाँ पर फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर जो आपका असेस किया जा रहा है दैट इज वोकैबुलरी, व्हिच अगेन कैरीज 2 मार्क्स. यहाँ वोकैबुलरी के साथ आपकी स्पेलिंग्स को भी असेस किया जाता है, व्हिच मींस के वर्डिंग्स की डिटेल्स की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पर. सो द कलेक्टिव स्कोर ऑफ दिस टास्क इज 7 मार्क्स एंड आप इजिली कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस की टेक्निक्स प्रैक्टिस करके 7/7 अचीव कर सकते हैं इस टास्क के अंदर. Skills assessed over here is your reading skill and writing skills. Weightage here is 20.7%, जहाँ से 10.3% reading module को and 10.4% आपके writing module को
कंट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ पर आपको ये जो सारी समरी के स्टेप्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए जो आपके पास ओवरऑल टाइम लिमिट होती है दैट इज 10 मिनट्स, और इस टास्क के जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे एट द सेंटर दैट आर 1 to 2 questions. For any further information, please feel free to contact us at Topeka Consultants.